Hello, students. In today's module, we will be reading about our internal organs, in which we will learn about the importance and the function of internal organs. Now, children, as we all know, our body is a wonderful machine because it performs a number of functions at the same time, like we can talk, we can walk, we can feel the cold wind, we can breathe fresh air, and we can talk to our friends at the same time. Clear? This is why our body is called as a living wonderful machine. So we have different parts like eyes, ears, nose, hands, stomach, heart, etc. These all are the organs and they function together. So, those organs which we can see, like hands, legs, eyes, nose, are called as external organs, while those organs which are inside our body are called as internal organs. So, children, एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, इनको हम देख सकते हैं. और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑर्गन्स. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एक्सटर्नल and internal. For this chapter we will be reading about internal organs. Clear? So stomach, brain, heart, kidney, intestine, and lungs, liver. These are the internal organs. First, we will read about brain. Now, you can see the picture of brain. Our brain is very delicate and is protected by skull from outside. Brain controls the entire function of our body. Brain receives signals from our sense organs and sends information to other parts of the body. It stores information and helps to think and learn new things. It controls functions such as breathing, digestion, muscle control, emotions, heartbeat, etc. So, brain is one of the important part of our body which controls the इंटायर फंक्शन ऑफ द बॉडी. पूरा कंट्रोल सेंटर जो है वो हमारा ब्रेन है. कोई भी ऑर्गन कोई भी काम करने से पहले ब्रेन से सिग्नल को रिसीव करती है कि उसे कैसे रिएक्ट करना है. इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, हमें थिंकिंग, लर्निंग, नई थिंग कुछ भी होती है, फंक्शंस को कंट्रोल करना, ये सब किसका काम है? हमारे ब्रेन का. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड सेंटर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन, दैट इज हार्ट. Heart is an important organ of our body. It works day and night. As we all know, हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड पंप करना. ठीक है. हार्ट बीट अगर रुक जाती है तो पर्सन यूज टू डाई. तो दिन रात बिना रुके हार्ट हमारा ब्लड पंप करता रहता है और सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. नाउ वी कैन फील आवर हार्ट बीट्स ऑन प्लेसिंग आवर हैंड on the left side of our chest. Now children, please put your hand on your left side. तो आप फील करेंगे कि आपका हार्ट बीट कर रहा है. और हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट बीट्स अबाउट 72 times in a minute and circulates blood throughout our body through blood vessels. Now जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है और पूरी बॉडी तक ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पहुंचाता है. ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. Now I can tell you vessels are basically of two types, arteries and veins. हम इससे सिर्फ इतना याद करेंगे कि arteries क्या होते हैं, they are red in color, और veins जो होती हैं blue in color. Now you can see on your hand, on your legs, आपने देखा ना, आपको red vein भी दिखेंगी और blue veins भी, सॉरी red भी दिखेंगी और blue भी. तो red जो है वो arteries हैं और ब्लू जो है वो वेन्स हैं. आर्टरीज क्या करती हैं? ये प्योर ब्लड होता है इनके, ये हार्ट से दे यूज टू टेक इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्लियर? इसमें ऑक्सीजन होता है, इसके ब्लड जो ये रेड कलर का ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन, वाटर, फूड होता है.
जबकि जो वेन्स होती हैं दैट इज ब्लू इन कलर, ये क्या करते हैं, सारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन तो ब्लड हमारी बॉडी ने यूज कर लिया, जो ऑक्सीजन अब नहीं होती है उसमें क्या होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस से हार्ट तक लेके आते हैं प्योर करने के लिए, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है। क्लियर? तो वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स। Now we will moving to lungs. Now breathe deeply. Can you feel your chest moving up and down? Yes, you can feel. This happens because of the lungs. On both the sides of the heart are two spongy air-filled bags called lungs. You can see these are two spongy bags which are called as lungs. Now lungs का काम क्या होता है? They help to absorb oxygen from the air we breathe in. The oxygen is sent to various parts of the body through blood, and the carbon dioxide is removed from the blood in lungs. It then throws out carbon dioxide through nose. Now children, जो आपके लंग्स होते हैं ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं जब हम इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है, और क्या रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर? Now we will be moving to next internal organ, that is stomach. Stomach is located in the upper left side of the belly. It is hollow, J-shaped. Now you can see it is a J-shaped muscular elastic bag under the ribs. From upper end it connects to food pipe. देखिए you can see ये upper end यहाँ से food pipe से connected होता है। क्लियर हो गया? और लोअर एंड से ये इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। स्टमक तो है, स्टमक सिक्रीट जूसेस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये कई जूसेस को सिक्रीट करता है जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? ओके, वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। हम क्या बोलते हैं, हमें बहुत च्यू करके फूड को चबा चबा के खाना चाहिए। क्यों? ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। सेकेंडली, वी शुड नॉट ओवर ईट। ओवर ईट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपने देखा ना ओवर ईट कर जाते हैं तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, जो स्टमक है हैवी लगने लगता है, क्योंकि हमारा स्टमक बहुत छोटा होता है और वो बहुत थोड़ा सा फूड और वाटर को एक टाइम में होल्ड कर सकता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसे टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा छोटे छोटे इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी विल मूविंग टू किडनी। Now, kidneys are two bean-shaped organs in our body. The kidneys are located at both the sides of our backbone, just under the rib cage. We all have two kidneys, but we can live healthy life even with one kidney. किडनी बीन शेप्ड की होती है, ये टू होती है, हमारे पास टू होती हैं सबके पास। अब इनका काम क्या होता है? दे हेल्प टू फिल्टर द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में ये क्या करते हैं? ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल उसे बाहर करते हैं। जो लिक्विड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक किडनी का काम होता है। तो वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे टू हेल्प आवर किडनीज रिमूव द वेस्ट ईजिली। दिस ऑल्सो कीप्स किडनीज हेल्दी। सो हमें बहुत पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 8 ग्लासेस तो पीना ही है, ताकि हमारी जो बॉडी का वेस्ट है लिक्विड फॉर्म वो बाहर हो जाए। क्लियर हो गया? और हम हेल्दी भी रह सकेंगे। So now we will be reading about bones and muscles. Bones. Press your body at different parts like chest, hand, legs, fingers. अगर हम chest करेंगे तो हमें chest में या आपके hands में, legs में अगर आप press करोगे तो you will feel something hard. What are they? These are bones. These are bones. There are 206 bones in an adult human body. Adult human body में 206 bones होती हैं. They are joined together to form bony framework. This is called as skeleton. Clear? The skeleton gives shape to our body. It also holds our body up and gives it a support. It protects soft internal parts of our body like heart,
lungs and brain. स्केलेटन का काम क्या होता है? ये जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को शेप देती है, क्लियर। इसके अलावा ये सपोर्ट देती है। इसके अलावा ये क्या करती है? जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इनको प्रोटेक्ट करती है, क्लियर। Now moving to the muscles. Now when you touch your body at different places, did you feel some soft areas also? Yes, these are muscles. There are more than 600 muscles in our body. मसल्स क्या होती है? जब आप अपने को टच करोगे तो आप देखोगे सॉफ्ट सॉफ्ट भी दिख रहा है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट जो हम फील करते हैं, दीज आर मसल्स। अब मसल्स का काम क्या होता है? When attached with bones, muscles help them to move. मसल्स क्या करते हैं? बोन के साथ अटैच करके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। Contraction or relaxation of muscles cause the movement of bones. That is how we walk, run, jump, play, hold, or throw. Muscles are present in internal organs like heart. These muscles help organs to do their work properly. तो मसल्स क्या होती हैं? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी होती हैं, और जैसे कि हार्ट, तो हार्ट मसल से तो बना हुआ है, तो ये उसको हार्ट के फंक्शन में हेल्प करती है। इसके अलावा आप जब हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, अपने लेग्स की मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो बोन से ये कैसे मूव कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ मसल्स, क्लियर। So we have covered stomach, kidney, heart, brain, which are the important internal organs, and we have covered bones and muscles. Now after this you are going to read the chapter and go through this video. For today we will be winding up. Thank you. Have a good day ahead.